پیپلز پارٹی اور نون لیگ ملکی مسائل حل کرنے کے لیے ایک ہو گئے۔ اسلام آباد میں پیپلز پارٹی اور نون لیگ رہنماؤں کی پریس کانفرنس، سیاسی جماعتوں کے ساتھ مل کر مسائل کا حل نکالیں گے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا عزم، لیگی رہنما مشاہد اللہ خوش ہو گئے، کہا اللہ بلاول کو صحت اور زندگی دے۔ بلاول کے خیالات سن کر خوشی ہوئی، بلاول نے آئین سے کمٹمنٹ کا اظہار کیا۔ بلین ٹری سونامی کرپشن میں بہہ گیا، پارلیمانی انکوائری کمیٹی کا بنوں کا دورہ، منصوبے میں گھپلوں کا انکشاف۔ محکمہ فارسٹ نے 2000 پودے لگائے، ریکارڈ میں 2 لاکھ پودے ظاہر کیے گئے، مزدوروں کی اجرت بھی اڑا لی گئی، 15,000 کے بجائے 5,000 دیے۔ خیبر پختونخوا اسمبلی میں بلین ٹری سونامی منصوبے پر وضاحت طلب، اپوزیشن کی ہنگامہ آرائی، اراکین کی وزیر اطلاعات شوکت یوسفزئی پر تنقید۔ اپوزیشن نے تمام کمیٹیوں سے استعفے کا اعلان کیا تھا، استعفوں کے بعد اراکین کا بنوں جانا کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ وزیر اطلاعات خیبر پختونخوا شوکت یوسفزئی کا رد عمل، کہا بلین ٹری منصوبے پر پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے۔ پنجاب اسمبلی میں قائم مقام اسپیکر سے تلخ کلامی، 3 لیگی ارکان کی رکنیت معطل کر دی گئی۔ عظمیٰ بخاری اور عبدالرؤوف کا دوست مزاری سے سخت جملوں کا تبادلہ ہوا، بڑے عہدوں پر چھوٹے لوگ بیٹھ جائیں تو یہی ہوتا ہے۔ عظمیٰ بخاری کا رد عمل، کہا ایوان میں کوئی غلط بات نہیں کی، ڈپٹی اسپیکر نے بدتمیزی کی، ڈپٹی اسپیکر بدتمیزی کرے تو انہیں سزا کون دے گا؟ لیگی قیادت کے بعد رہنما بھی شکنجے میں آ گئے، LNG کیس تحقیقات میں گھیرا تنگ، سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی اور سابق وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل کا نام ECL میں ڈال دیا گیا۔ لیگی رہنماؤں سمیت 7 ملزمان کے بیرون ملک جانے پر پابندی عائد۔ نام نہاد ٹیکنوکریٹ سیٹ اپ لایا جا رہا ہے، پارلیمانی نظام کے علاوہ کسی نظام کو نہیں مانیں گے۔ رضا ربانی کا سینٹ اجلاس میں خطاب، کہا پاکستان کی سیکیورٹی کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے، سی پیک کے 300 منصوبوں کو ختم کر دیا گیا، حکومت کو ابھی تک توفیق نہیں ہوئی کہ IMF سے مذاکرات پر ایوان کو اعتماد ملے۔ وزیر اعظم کی بیجنگ میں MD IMF کرسٹن لاگارڈ سے ملاقات، IMF پروگرام پر ہونے والی پیش رفت کا جائزہ، وزیر اعظم نے معاشی صورتحال سے آگاہ کیا، وزیر خارجہ، مشیر خزانہ اور مشیر تجارت بھی شریک ہوئے۔ چینی سفارت خانے کے ڈپٹی چیف آف مشن کا ISPR کا دورہ، میجر جنرل آصف غفور سے ملاقات، چینی مہمان کا پاک چین تعلقات کے فروغ میں ISPR کے کردار کا اعتراف۔ نشوہ کی موت پر انکوائری کمیشن اور دارالصحت اسپتال کے مالکان کی گرفتاری کا مطالبہ پورا نہیں کیا گیا۔ نشوہ کے والد کی پریس کانفرنس، مطالبات کی منظوری کے لیے کل شام تک کی ڈیڈ لائن دے دی۔ اسپتال کا سیکیورٹی انچارج گرفتاری کے بعد عدالت میں پیش، 2 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور۔ رتو ڈیروں میں ایڈز کے پھیلنے کا انکشاف، کراچی سے سندھ ایڈز کنٹرول کی 2 رکنی ٹیم تعلقہ ہسپتال پہنچ گئی، 2 روزہ کیمپ قائم کر دیا گیا، بچوں اور والدین کے خون کے نمونے لیے جائیں گے۔ نقل مافیا نے سندھ کے تمام تعلیمی بورڈز کی وکٹ اڑا کر رکھ دی، میٹرک اور انٹر کے امتحانات کے بعد ٹیکنیکل بورڈ کے امتحانات میں بھی پرچہ آؤٹ، CIT اور سول کا پرچہ 45 منٹ پہلے طلبہ کے ہاتھوں میں پہنچ گیا۔ لاہور کے دارالامان سے 2 لڑکیوں کا فلمی فرار، واش روم کی دیوار توڑ ڈالی، بالائی منزل سے دوپٹوں کی رسی بنا اتر گئیں، پولیس نے بھی پھرتی دکھائی، داتا دربار سے دھر لیا۔ امریکی ریاست کولوراڈو میں ہائی وے پر ہولناک حادثہ، 12 گاڑیاں اور 3 ٹرک آپس میں ٹکرا گئے، کئی فٹ بلند شعلوں نے ٹرک اور گاڑیوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا، حادثے میں متعدد افراد ہلاک، 6 زخمی۔ طاقتور سمندری طوفان کینت نے موزمبیق کو ہلا کر رکھ دیا، شمالی ساحلی پٹی سے ٹکرا گیا، 140 میل فی گھنٹہ رفتار کی ہواؤں سے بھونچال آ گیا، ساحلی علاقوں میں موسلادھار بارش، کوموروس میں 3 افراد ہلاک، درخت جڑ سے اکھڑ گئے، کئی گاڑیوں کو نقصان پہنچا، 6 لاکھ سے زائد افراد کے متاثر ہونے کا خدشہ۔ کینٹ میں قومی کرکٹ ٹیم کا
प्रोफेशनल ट्रेनिंग सेशन। 12 खिलाड़ियों ने बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की प्रैक्टिस की। शुएब मलिक, मोहम्मद आमिर, इमाद वसीम, मोहम्मद हसनैन और हारिस सोहेल ने आराम को तरजीह दी। कौमी टीम हफ्ते को कैंट के खिलाफ प्रैक्टिस मैच से दौरे इंग्लैंड का आगाज करेगी। सूबाई वज़ीर इत्तेहाद के सरबराही में और उनके लिए डेट रखा गया है 25 अप्रैल के वो बनो से का विजिट करेंगे। और अकरम खान दुरानी ने ये वादा किया था कि बनो जाके वहाँ पे वो इस कमेटी के अरकान को तमाम शवाहिद और सबूतों के साथ करप्शन की निशानदेही करेंगे। तो 25 तारीख को जब कमेटी के विजिट का वक्त था तो उसी वक्त सूबाई वजीर इत्तलात ने इनकार कर दिया और उसने कहा है कि चूंकि अपोजिशन ने कमेटी से इस्तीफा दिया है इसलिए इसको पोस्टपोन कर दिया गया है। जबकि अपोजिशन का कहना था कि पार्लिमानी कमेटी से कोई इस्तीफा नहीं दिया है और वो कमेटी ले जाके वो बनो में जिस जिस जगह पे हुकूमत ने जंगल लगाने के जो कहा था कि यहाँ पे पौधे लगाए गए हैं वहाँ पे सहाफियों को लेके गए हैं जहाँ पे जो हुकूमत की तरफ से तादाद बताई गई थी उतने इतने दरख्त भी नहीं थे। और फिर वहाँ की जो मुलाजिमीन थे जिनका कहा गया था कि कागजात में उनको 15,000 रुपए की सब्सिडी दी जा रही है। अच्छा, शहाबुद्दीन, आपने बताया बहुत सी जगह ऐसी थी कि वहां पर जो तादाद बताई गई थी पौधे लगाने के हवाले से वो कम थी। मजदूरों के हवाले से भी आप बता रहे हैं कि उनको जितने पैसे देने की बात हुई थी उतने पैसे नहीं दिए गए। तो क्या मजदूरों ने कुछ बताया इस मामले पर? बिल्कुल, वो मजदूर जो थे वो अकरम खान दुरानी और पार्लिमानी कमेटी के अरकान ने बुला के उसको सामने कर दिया और बाकायदा जो वहाँ पे लोकल जो नुमाइंदे हैं टीवी चैनल्स के और प्रिंट मीडिया के उनके सामने पेश किया और उन्होंने उनके सामने बता दिया कि हमने कभी भी 15,000 रुपए की सैलरी नहीं दी है। कोई बता रहा था कि मुझे 10,000 रुपए दे रहे हैं, कोई 8,000 रुपए, कोई 12,000 रुपए, लेकिन 15,000 रुपए की किसी ने नहीं बताया कि उनको सैलरी दी जा रही हैं। ठीक है शहाब, आप हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। इस मामले पर आपसे मजीद भी गुफ्तगू करेंगे। बिलियन ट्रीज मंसूबे में बड़े पैमाने पर करप्शन और घपलों के इंकशाफ पर पार्लियामेंट की इंक्वायरी कमेटी ने बन्नू का दौरा किया, जबकि कमेटी के रुकन अकरम दुरानी ने इंकशाफ किया कि 1 अरब से जायद दरख्त लगाने का दावा करने वाले 10 करोड़ दरख्त भी नहीं लगा सके। बिलियन ट्रीज सुनामी मंसूबे में करप्शन की तहकीकात के लिए 18 रुकनी पार्लिमानी कमेटी तश्कील दी गई है। मंसूबे में करप्शन और घपलों के इंकशाफ पर पार्लिमानी कमेटी ने बन्नू का दौरा किया, जिसमें अरकान असेंबली अकरम खान दुरानी, खुशदिल एडवोकेट, शगुफ्ता मलिक, सरदार यूसुफ और लुत्फुर रहमान समेत दीगर अरकान ने साइट का जायजा लिया। पार्लियामेंट की इंक्वायरी कमेटी ने साइट का दौरा भी किया। अपोजिशन रहनुमा और कमेटी के रुकन अकरम दुरानी ने इंकशाफ किया है कि 1 अरब से जायद दरख्त लगाने का दावा करने वाले 10 करोड़ दरख्त भी नहीं लगा सके। अकरम दुरानी का कहना था कि 400 किनाल की जमीन पर सरकारी रिकॉर्ड में मजदूर को 15,500 के बजाय 5,000 रुपए मिल रहे हैं। 2,000 पौधे लगाकर 2 लाख जाहिर किए गए। मजदूर को चेक के बजाय कैश पेमेंट की जाती है। महकमे जंगलात के एहलकारों ने नाली चेक के मुकाम पर 10 लाख पौधे रिकॉर्ड में जाहिर किए, लेकिन हकीकत में 1000 भी नहीं लगे। अच्छा शहाब, मजीद ये जानना चाहेंगे आपसे कि अकरम दुरानी की जानिब से जितने भी फैक्ट्स फिगर्स पेश किए गए हैं, शौकत यूसुफजई उन तमाम को मुस्तरद करते हैं। आपने वहां पर फील्ड पर क्या सूरत हाल देखी? बिल्कुल, ये जो अकरम खान दुरानी ने जो ये फैक्ट्स एंड फिगर शेयर किए हैं और वहाँ पे पार्लिमानी कमेटी और मीडिया के नुमाइंदों के सामने उन लोगों ने ये इकरार भी किया है कि यहाँ पर उनको जो तनख्वाहें दी जा रही हैं वो भी सरकारी कागजात से हटकर जो है ना वो गलत आदाद शुमार बताए गए हैं। जबकि शौकत यूसुफजई का कहना है कि ये बिल्कुल जो ये इल्जामात लगा रहे हैं और इसमें कोई हकीकत नहीं है। और उनका कहना है कि ये जिन लोगों के खिलाफ हुकूमत ने कार्रवाई की थी और जो गफलत की मुर्तकब हुई थी ये वही लोग थे कि जो उनके सामने पेश किया गया है। और हुकूमत ने ये भी कहा है कि ये एक और दिन जो है ना मुकर्रर करके और जहाँ जहाँ पे अपोजिशन चाहे तो वो वहाँ पर जाके ये उसके सामने जो है ना जाके ये तहकीकात करेंगे। लेकिन असल जो हकीकत है वो यही है कि ये सूबिया शाहिद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की रुकनी असम्बली यहाँ पे खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में उसने भी गुज़श्ता दौरे हुकूमत ये सवाल उठाया था। तो हुकूमत की तरफ से जो आदाद शुमार उसको एक सवाल के जवाब में दिया गया था वो भी गलत था, क्योंकि जो हुकूमत का दावा था कि 1 अरब 20 करोड़ पौधे लगाए गए हैं वो उसमें जो है ना चंद ही करोड़ दरख्तों की निशानदेही की गई थी कि पेशावर डिवीजन में हजारा, मलाकन और इसी तरह DI खान, बनो, उसमें जो है ना जो दरख्त लगाए गए थे वो हुकूमती दावे से बहुत ज्यादा कम थे।
ठीक है शहाब, हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। अकरम दुर्रानी के इल्जामात पर वजीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा शौकत यूसुफजई ने रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि अपोजिशन ने तमाम कमेटियों से इस्तीफे का ऐलान किया था। इस्तीफों के बाद अरकान का बन्नू जाना कोई हैसियत नहीं रखता। बिलियन ट्री मंसूबे की तहकीकात के लिए कमेटी हुकूमत ने बनाई है। उन्होंने मजीद कहा कि बिलियन ट्री मंसूबे पर प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, अपोजिशन के इल्जामात को मुस्तरद करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त वजीर इत्तलात, सूबाई वजीर इत्तलात शौकत यूसुफजई साहब। शौकत साहब, बहुत शुक्रिया, आपने आज न्यूज़ के लिए वक्त निकाला। सूरत हाल आपके सामने है, अकरम दुर्रानी की जानिब से जो फैक्ट्स फिगर्स शेयर किए गए हैं, आप उसको मुस्तरद करते हैं, किस बिना पर? देखिए, पहली बात तो ये कि जो कमेटी का जिक्र हुआ है ना, ये कमेटी हमने खुद बनाई थी। इनके ये डिमांड करते रहे कि जी करप्शन हुई है, तो वो कमेटी हमने बनाई और उसका मेन मकसद ये था कि ताकि आवाम को सही हकीकत पहुंच सके। इन्होंने 2 दिन पहले असम्बली के अंदर ऐलान किया कि जी हम सारे कमेटियों से इस्तीफा दे रहे हैं, तो वो कंफ्यूजन चल गई और मुझे अप्रोच किया गया असम्बली से कि जी अभी आप जाएंगे कि नहीं जाएंगे। तो मैंने कहा मुझे तो नहीं पता है, क्योंकि इन्होंने अगर इस्तीफा दिया तो फिर कैसे जाएंगे। तो तमाम असम्बली मेंबरान ने अपने अपने इलाकों में जाना था, तो मैंने उनसे कहा इस तरह करें, इसको पेंडिंग रख लें, जब ये इनका इशू हल हो जाए फिर हम दोबारा इसको बुला लेंगे इजलास और फिर चले जाएंगे। लेकिन बदकिस्मती देखे कि उन्होंने खुद ही चले गए, मीडिया को लेके जाए और उस जगह पे गए जहाँ पे कुछ भी नहीं था, यानी वहाँ पे कोई प्लांटेशन का हमारा कोई प्रोग्राम नहीं था और गलत गलत जगहों पे लेके गए हैं। दूसरा, उन लोगों को स्पेशली लेके गए हैं जिनके खिलाफ हमने कार्रवाई की है, फॉरेस्ट के लोग हैं और जिनके खिलाफ रिकवरी ऑर्डर हो चुका है। यानी ये सारी एक ऐसा ड्रामा किया गया जिसका कोई फायदा नहीं है। अगर आपने आवाम को कुछ बताना है तो हम तो अभी भी आपके साथ जाने के लिए तैयार हैं, जो मर्जी आप 3200 जगह हमारी, उन 3200 साइट्स में से आप कोई भी साइट सेलेक्ट कर लें और जाएं, हम आपको वेलकम करेंगे। हमने मीडिया को भी मैं साथ ले जाने के लिए तैयार हूँ। तो शौकत यूसुफजई साहब, आप ये कह रहे हैं कि गलत साइट्स का दौरा किया गया है, चले आप ये कहते हैं, लेकिन जो उजरत दी गई है वहाँ पे मजदूरों को, वो भी जो रिकॉर्ड में है 15,000 रुपए जाहिर की गई है, लेकिन उन्हें 5,000 रुपए दिए गए। मजदूरों ने खुद ये स्टेटमेंट दिया है। देखिए,